Hello everyone, welcome to this video. In this video, we will talk about pandas. As we know, panda is a library or a Python package that are used for analyzing the data. And हमने देखा था कि numpy भी जो है हमारा scientific calculation में यूज आता है. By using array, हम वहाँ पर जो है data analysis को यूज कर सकते हैं. Then why we need pandas? First of all, we have something difference between the NumPy and the pandas. So first of all, I will explain you what is pandas. Okay. Then we will talk later what is the difference between NumPy and pandas. So what is pandas? Basically, pandas is stand for panel data. Okay. And it is a high level data manipulation tool used for analyzing the data, and it is very easy to import and export data using pandas library, and which is you can say very rich set of functions. In panda we will see later there are lots of functions that are used for analyzing the data. Okay, so it is a built on package like numpy, and we will see later the matplotlib जब हम visualization को देखेंगे. So matplotlib is also a library, and gives a single and convenient place to do most of our data analyzing and visualization work. So हमने देखा था numpy में हम बेसिकली एरे को क्रिएट करते थे, एंड हम वहाँ पर आप कह सकते हैं होमोजीनियस डेटा टाइप मींस सेम डेटा टाइप पे वर्क करते थे और डेटा को एनालिसिस करते थे. एंड हम अभी पांडास को देखेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी विल सी द मैटप्लॉटलिब. सो मैटप्लॉटलिब भी विजुअलाइजेशन में यूज होता है. लेट्स सी कि आपने इनसाइट्स को फाइंड आउट कर लिया, बट विजुअलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, ताकि हम डायरेक्टली उस आप कह सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को देखकर हम वहां से जो है इनसाइट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, so now we will see what is the main difference between the pandas and the numpy. So first of all, you can say a numpy array requires homogeneous data, means same type of a data. Let's see कि हमने देखा था कि जब हम एक nd array को क्रिएट करते हैं तो वहां हम डेटा टाइप दे सकते हैं, विच इज एक्सप्लिसिट डेटा टाइप, जहां पर हम उसको इंट हम दे सकते हैं. अगर हमें वो एरे स्ट्रिंग में चाहिए तो वहां हम स्ट्रिंग में दे सकते हैं. सो वहां पर हमारे पास सेम टाइप ऑफ डेटा होता है. But in pandas, we will use the different types of data. Like we use the float, int, string, date time, etc. Now, pandas have a similar interface for the operation like file loading, plotting, selection, joining, group by. Okay, which come very handy in the data processing applications. So हमने numpy के अंदर भी कुछ functionalities को देखा था जहाँ पर हम basically load करवाते थे, and we will use some different types of functions, sorting and all, and we will also save the text file or the file. But in pandas also it have a simple interface for the operations. Okay, कि हम easily वहाँ पर फाइल को यहाँ पर लोड करवा सकते हैं, प्लॉट करवा सकते हैं. ओके, एंड सो ऑन, जो कि हम अभी देखेंगे. नाउ another thing is कि pandas data frame have a columns name. Let's see कि हमारे पास जो numpy array होता था वहां पर हमारे पास कोई कॉलम्स नहीं होते थे. इस तरीके से हम कह नहीं सकते हैं कि वहां पर हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा फ्रेम होता था. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द डेटा फ्रेम इन द pandas, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक वहां पर हमारे पास एक टेबुलर फॉर्मेट अच्छी तरीके से नहीं होता था जहां पर हमारे पास कॉलम्स नेम्स हो एंड सो ऑन. सो pandas हैव डेटा फ्रेम्स जहां पर हमारे पास कॉलम नेम्स होते हैं जो कि हमें बहुत ही आप कह सकते हैं इजीली ट्रैक करने देते हैं हमारे डेटा को. कि लेट से कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा चाहिए, देन आई इजीली फेच द डेटा बाय यूजिंग द pandas. ओके, so panda is used when the data is in the tabular format, whereas the numpy is used for numerical आप कह सकते हैं arrays based data manipulation. numpy में हम arrays को यूज करते थे, एंड हम pandas के अंदर आपके टेबुलर फॉर्मेट को यूज करेंगे, और यू कैन से वी यूज द डेटा फ्रेम. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द pandas एक्चुअली में कि हम किस तरीके से अब हम pandas को
हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग इज इंस्टॉलिंग द पांडास। लेट्स सी, अभी हम गूगल कॉलैब पर है तो यहाँ पर हमें पांडा को इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। बट अगर आप एक अदर आईडी पर वर्क कर रहे हैं या आप अपने सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, देन यू हैव टू नीड टू इंस्टॉल द pandas. Then you will simply write the command pip install pandas. Okay, and in the collab it is a by default, so we simply use import pandas as pd. ओके, सो हमने pandas को import करवा लिया है। नाउ we will talk about the data structures. ओके, सो अभी हम बात करेंगे कि हमारा डेटा को जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे पास डेटा आएगा या जो हमारे पास डेटा है, वो जो है हमारे पास इन pandas टेबुलर फॉर्मेट में होता है। बट pandas have lots of data type. Okay, so we will see one by one. Basically there are two commonly used data structure in pandas. So first of all is your series and second is your data frame. Okay, so first of all we talk about the series and then we later talk about data frames. Now what is the series? Basically series is a one dimensional array containing the sequence of the values of any data type. लाइक हमारे पास जो एक सीरीज मीन्स इन सिंपल वर्ड कि आप एक कॉलम को एक सीरीज मान सकते हैं जो कि एक 1D एरे है। वहां पर हम किसी भी डेटा टाइप को वहां पर इंक्लूड करवा सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, एटसेट्रा। ओके, which by default have numerical data labels starting from the zeros. Basically अभी जो मैं यहाँ पर सीरीज क्रिएट करूंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एन एग्जांपल ताकि हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सो वी राइट द टॉपिक विच इज क्रिएशन ऑफ सीरीज। नाउ अभी हम सीरीज को लेट से क्रिएट करते हैं। देन हाउ वी विल क्रिएट द सीरीज? वेरी सिंपल, हमने pandas को इंपोर्ट कर लिया है। नाउ यहाँ पर मैं एक सीरीज वन करके एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पर हम इसको सीरीज क्रिएट करते हैं। सिंपल pd डॉट सीरीज। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास सीरीज क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक सीरीज आप कह सकते हैं फंक्शन होता है जो कि आपका 1D आप कह सकते हैं एरे को क्रिएट करता है। ओके, नाउ इसके अंदर हमें बेसिकली आपका डेटा इंक्लूड करवाना होता है। आपका डेटा वो लिस्ट के अंदर हो सकता है, आपका डेटा वो numpy एरे के अंदर हो सकता है, या फिर आपका एक डेटा आप डिक्शनरी के अंदर भी करवा सकते हैं। हम इनकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक द सिंपल डेटा इनटू द लिस्ट 10 20 30। नाउ सिंपली आई प्रिंट द series 1. Now here you can see यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का एक डेटा है। What is it? So यहाँ पर अगर आप देखें जो हमने अभी लिस्ट पास किया वो यहाँ पर हमारे पास सीरीज क्रिएट हो गया, बट 0 1 2 व्हाट इज इट? सो ये हमारे पास बेसिकली बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हैं लेबल्स आते हैं, आप इनको इंडेक्स वैल्यू भी कह सकते हैं। ओके, एंड हमें यहाँ पर एक डेटा टाइप दिख रहा है, ओके, जो कि हमारा इंट है। ऑब्वियसली जो हमने लिस्ट पास किया है उसके अंदर हमारे पास जो डेटा टाइप है वो इंटीजर डेटा टाइप है। ओके, सो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम स्केलर वैल्यूज की हेल्प से यहाँ पर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी कि हम किस तरीके से अब इंटीजर डेटा टाइप ना यूज करके क्या हम आप कह सकते हैं एक स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पर मैं एक सीरीज 2 क्रिएट करूंगा। वेरी सिंपल, pd डॉट सीरीज एंड देन आई पास द लिस्ट, लेट्स से राम, ओके, एंड योर श्याम, एंड लेट्स से ओके रवि। ओके, नाउ ऑन, ओके, बेसिकली यहाँ पर हम स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, सो वी हैव टू यूज द कोट्स। ओके, नाउ यहाँ पर मैं सिंपली लेट्स से
सीरीज 2 को जो है वो मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सीरीज 2 प्रिंट हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है, राम, श्याम एंड रवि। ओके, एंड उसके रिलेटेड जो है हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू भी आ चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम एक सीरीज को क्रिएट कर पा रहे हैं। ओके, एंड हमें यहाँ पर डेटा टाइप ऑब्जेक्ट मिला है। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया जाता है इन द पांडास, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ वी हैव एन इशू डेट कि यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू आया है। व्हाट इफ कि क्या मैं यहाँ पर मेरा पर्टिकुलर को इंडेक्स वैल्यू दे सकता हूँ? लेट्स से कि मुझे यहाँ पर 10 चाहिए था, लेट्स से यहाँ पर मुझे कुछ और चाहिए। सो हम किस तरीके से हमारा जो है आप कह सकते हैं यूजर डिफाइंड इंडेक्स यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो आई क्रिएट द सीरीज 3 सिंपल pd डॉट सीरीज, एंड देन सिंपल हम यहाँ पर एक डेटा पास कर देंगे जो कि हमारा सीरीज डेटा होगा। लेट्स से 1 2 3 4। ओके, नाउ आई यूज द इंडेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक इंडेक्स का यूज करूंगा। ओके, नाउ ये जो इंडेक्स एट्रीब्यूट आप कह सकते हैं ये बेसिकली हेल्प करता है हमारा, आप कह सकते हैं यूजर डिफाइंड इंडेक्स को। लेट्स से कि मैं यहाँ पर मंथ के नेम देना चाहता हूँ। लेट्स से अभी हमने देखा कि हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंडेक्स इंटीजर दे सकते हैं, बट लेट्स सी कि क्या मैं यहाँ पर स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 2 है और 2 के जो करस्पॉन्ड आप कह सकते हैं मंथ है विच इज योर फेब्रवरी, सो फैब, देन थर्ड पे हमारे पास मार्च, एंड फोर्थ इज योर अप्रैल, सो एपीआर। नाउ सिंपली यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा सीरीज 3 को। ओके, बेसिकली यहाँ पर नेम एरर है बिकॉज मैंने यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक किया है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू है जो हमने दिया था यहाँ पर पास किया था वो हमें यहाँ पर मिल चुका है, एंड जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। अगर आप अभी डेटा टाइप देखेंगे विच इज इंट, बिकॉज जो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज है, ओरिजिनल डेटा है विच इज 2 3 4 विच इज आर इन द इंट डेटा टाइप, एंड द इंडेक्स इन द स्ट्रिंग। बेसिकली ये जो डेटा टाइप बताता है ये ऑलवेज आपका जो ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल वैल्यू आप कह सकते हैं उसका बताता है। ओके, now we also create a series by using your numpy arrays. Let's see. So I create a, an array. Let's say simple np dot array. But first of all, we have to import the numpy. So import numpy as np. ओके, सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इंपोर्ट करवा लिया। नाउ वी यूज द एरे फंक्शन टू क्रिएट एरे। नाउ सिंपली यहाँ पर मैं एक लिस्ट पास कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर मैं एक सीरीज क्रिएट करता हूँ, लेट्स से सीरीज 4, एंड विच इज योर pd डॉट सीरीज, एंड यहाँ पर हम सिंपली arr1 को पास कर देंगे। लेट्स सी सीरीज 4। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरे है वो भी अगर हम यहाँ पर पास करते हैं वो भी हमारे पास यहाँ पर सीरीज क्रिएट करके दे देता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड सिंपली यहाँ पर आप इंडेक्स वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं टू चेंज द इंडेक्स। ओके, सो नाउ सी द क्रिएशन ऑफ एन एरे। ओके, द क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम द डिक्शनरी। अब हम देखेंगे कि डिक्शनरी की हेल्प से हम किस तरीके से आपकी सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी, डिक्ट 1 हमारे पास एक डिक्शनरी है, एंड एज यू नो कि डिक्शनरी जो होती है वो हमारे पास कीज एंड वैल्यू पेयर में होती है। तो जो डेटा आएगा हमारे पास शो होगा जो सीरीज, ओके, जब मैं आपको शो करवाऊंगा तब वहां पे मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, एंड यहाँ पर लेट्स से कि हम कंट्री एंड उसका लेट्स से कैपिटल को यहाँ पर लिख देते हैं। लेट्स से इंडिया एंड न्यू दिल्ली। ओके, second item will be your, let's say, UK and then London. Okay,
next will be your, let's say, Japan. Okay, and then it's Tokyo. ओके, सो यहाँ पर हमने जो है की वैल्यू पेयर के अंदर बेसिकली यहाँ पर हमने डेटा को इंसर्ट करवा दिया। नाउ अब हम चाहते हैं कि हम एक सीरीज क्रिएट करें, सीरीज 5। वेरी सिंपल, pd डॉट series and then simply insert the data which is our dict1। नाउ यहाँ पर मैं ओके सीरीज 5 को यहाँ पर मैं एक बार प्रिंट करवा देता हूँ। नाउ हियर यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स वैल्यू भी आ चुका है और हमारे पास जो है यहाँ पर वैल्यू भी आ चुका है जो कि हमारा डेटा का वैल्यू है। सो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो की है डिक्शनरी की वो एज एन इंडेक्स पास हुआ है एंड जो हमारे पास वैल्यू है वो एज ए वैल्यू पास हुआ है और इसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है बिकॉज हमारे पास जो न्यू दिल्ली, लंदन एंड टोक्यो है बेसिकली हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। So I hope you understand कि how we can create a series by using your list, by using your NumPy array, by using your dictionary. Okay, let's see the another thing or another topic which is accessing element of a series। हम किस तरीके से सीरीज का एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास डेटा जो है वो सीरीज के फॉर्मेट में है बट हम किस तरीके से उस पर्टिकुलर डेटा को हम आप कह सकते हैं आउटपुट में शो करवाएंगे। सो वी टॉक अबाउट एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ सीरीज। ओके, नाउ हमने जब पाइथन देखा था एंड जब हम नमपाई को भी देख रहे थे वहां पर हम यूज कर रहे थे आपका इंडेक्सिंग। आपने देखा होगा कि हम जब लिस्ट को या फिर आप कह सकते हैं किसी भी सीक्वेंस डेटा टाइप मीन्स योर टपल मीन्स योर स्ट्रिंग वहां पर हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं पर्टिकुलर आपके एलिमेंट को फेच करवाने के लिए। सेम पांडास के अंदर भी हम इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट इंडेक्सिंग। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास लेट्स से कि मैं लिख देता हूँ सीरीज 1 ताकि हम एक डेटा को फेच कर पाए। सो हमारे पास लेट्स से कि ये सीरीज 1 है। नाउ मैं चाहता हूँ कि मैं इस 30 को आउटपुट के अंदर शो करवाऊँ। सो हाउ विल वी कैन, सो वी सिंपली यूज सीरीज एंड देन वी यूज आर स्क्वायर ब्रैकेट ताकि हम यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू को पुट कर सकें। ओके, सीरीज 1 आएगा। ओके, एंड नाउ वी सिंपली इंसर्ट द इंडेक्स वैल्यू। लेट्स से कि हमारा जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 2। नाउ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 30 आ चुके हैं। ओके, इसको अगर आप एक प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे देन यू विल गेट द 30। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो है आपका इंडेक्सिंग की हेल्प से पर्टिकुलर सीरीज का जो एलिमेंट है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, बट अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखा हो तो हमारे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है। क्या हो कि हमारे पास लेट से कि स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग हो जिस तरीके से यहाँ पर हमने यूज किया था। ओके, वी विल यूज द सीरीज 3। ओके ओके, ओके, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज 3 है यहाँ पर आप इसको देखें अगर तो हमारे पास जो इंडेक्स है वो हमारे पास एज एन आप कह सकते हैं स्ट्रिंग है एंड जो हमारे पास डेटा है वो न्यूमेरिकल डेटा टाइप। बट जब हम इंडेक्सिंग देते हैं तब हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारा इंडेक्स वैल्यू देते हैं। ओके, जिस तरीके से हमने अभी ऊपर वाले एग्जांपल पे देखा था। बट क्या हम इस तरीके से यहाँ पर भी इंडेक्सिंग करवा सकते हैं। लेट्स से कि अगर मुझे इस 3 को एक्सेस करना है देन आई सिंपली राइट series 3 and then square bracket and simply pass the index which is March। नाउ आप देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट के अंदर 3 आ चुका है। सो इस तरीके से आप जो है एक स्ट्रिंग आप कह सकते हैं इंडेक्स वैल्यू को भी पास करके यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं एलिमेंट को एक्सेस करवा सकते हैं। ओके,
लेट्स से कि यहाँ पर हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं और हमारे डेटा को कुछ आप कह सकते हैं कि थोड़ा बड़ा क्रिएट करते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक सीरीज क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पर हम बेसिकली कंट्री के कैपिटल्स को बताएंगे, तो इसको मीनिंगफुल नेम देते हैं हम। लेट्स से कि सीरीज कैप कंट्री, ओके। Now which is equal to, let's say, simple pd dot series, and then we use the list ताकि हम यहाँ पर लेट्स से कि कैपिटल डाल सके। लेट्स से न्यू दिल्ली, ओके, एंड लेट्स से वॉशिंगटन डीसी, and next will be your, let's see, London, okay. Next is your, let's say, Paris, ओके। अभी हमारे पास जो है, जो हमारा आप कह सकते हैं सीरीज का एक्चुअल डेटा है, वो यहाँ पर हमने लिख दिया है, बट अभी तक हमने कोई इंडेक्स नहीं दिया है। लेट्स से कि हम इसके रिलेटेड इंडेक्स भी यहाँ पर पास आउट कर देते हैं। नाउ अभी हमने जो है कैपिटल्स लिख दिया। नाउ अब हम इंडेक्स में कंट्री पास कर सकते हैं। सो इसके करस्पॉन्डिंग हम कंट्रीज पास करेंगे। लेट्स से न्यू दिल्ली, तो इंडिया, ओके, एंड वॉशिंगटन डीसी, सो यूएसए, लंदन, सो यूके, एंड पेरिस, देन योर फ्रांस, ओके। सो यहाँ पर हमने बेसिकली एक सीरीज क्रिएट कर ली। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा आ चुका है जहां पर हमारे पास कंट्रीज नेम है और यहाँ पर हमारे पास कैपिटल के नेम्स हैं, ओके। सो अगर मुझे न्यू दिल्ली जो है एक्सेस करना है, देन एज यू नो कि हम यहाँ पर बहुत अब सिंपल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली हमारा सीरीज का जो नेम है वो लिखेंगे, देन वी यूज द स्क्वायर ब्रैकेट एंड वी सिंपली पास इंडिया, ताकि हमें न्यू दिल्ली मिल जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। बट क्या हो कि लेट्स से कि यहाँ पर मैं क्या न्यूमेरिकल इंडेक्स वैल्यू भी दे सकता हूँ। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। सो यहाँ पर आई यूज सीरीज नेम एंड सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ यहाँ पर मैं 1 पास करता हूँ। अगर आप देखें तो ये 0 है, ये 1 है। इट मीन्स अगर हमारा ये जो स्टेटमेंट है अगर ये करेक्ट हुआ तो हमारे पास वॉशिंगटन डीसी जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पर हमारे पास आउटपुट के अंदर वॉशिंगटन डीसी आ चुका है, ओके। अगर मैं इसको लेट से प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखता हूँ, देन वी विल गेट बेटर रिजल्ट, ताकि हमें यहाँ पर दिख गया है कि वॉशिंगटन डीसी जो है वो यहाँ पर आ चुका है। नाउ कम ऑन अनदर विच इज लेट से अभी हम जो है बेसिकली एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ही एक्सेस कर पा रहे हैं। यू कैन से कि यहाँ पर हम मल्टीपल आप कह सकते हैं एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे, देन हाउ वी विल डू। सो यहाँ पर भी हमारे पास उसके लिए एक आप कह सकते हैं बेसिकली एक सिंटेक्स है। सो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इसको। सो सीरीज कैप कंट्री एंड इंडेक्सिंग के लिए हम सिंपली हमारा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। नाउ इसके अंदर हम कोई भी इंडेक्स वैल्यू दे सकते हैं, बट अभी हमें जो है मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, देन वी विल पुट हियर द मल्टीपल इंडेक्स वैल्यू। सो यहाँ पर हमें बेसिकली एक लिस्ट पास करना होगा एंड इसके अंदर हम लेट से कि 3,2 दे देता हूँ लेट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा आ चुका है। सो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये 0th पोजीशन पे ये 1, ये 2, ये 3। सो 3 नंबर पर हमने सबसे पहले कॉल किया, सो हमारे पास फ्रांस और पेरिस आ चुका है। देन सेकंड इट मींस यूके और लंदन, सो यहाँ पर आपके पास यूके एंड लंदन आ चुका है। सो इस तरीके से आप मल्टीपल एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम आप यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह लेट से मैं यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर दूं, ओके। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लेट से मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे यूके मिले, लेट से मुझे यूएसए का मिले, देन आई विल गेट, ओके। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। ओके लेट से कि आपके पास ये डेटा आ चुका है मान के चलिए, और अब आपका वर्क ये है कि आपका जो ये डेटा है, लेट से मैं यहाँ पर आपको डेटा फिर से दिखा देता हूँ। सीरीज कैप कंट्री। नाउ यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास कंट्रीज के नेम है एज एन इंडेक्स, बट व्हाट इफ कि मुझे यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू जो है लेट से कि
10 20 30 40 इस तरीके से करना है, देन हाउ आई डू दैट? सो वी सिंपली यूज, लेट्स सी, यहाँ पर मैं इस तरीके का आप कह सकते हैं सिंटेक्स लिखेंगे, वी यूज द इंडेक्स, वी यूज डॉट इंडेक्स एंड इज इक्वल, और यहाँ पर हम सिंपल इंडेक्स वैल्यू पास आउट कर देंगे, लेट्स से 10 20 30 एंड 40। मेक श्योर कि नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी है उतने ही नंबर ऑफ इंडेक्स होने चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर वैल्यू एरर दिख सकता है। ओके, सो अगर अब हम सीरीज कैप कंट्री को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है वो चेंज हो चुका है और मॉडिफाई हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पर मैं आपको एरर भी शो करवा के दिखा देता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास 4 नंबर ऑफ डेटाज हैं, बट यहाँ पर हमने इंडेक्स वैल्यू 3 की दी है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू एरर आ चुका है। ओके, इसको मैं फिर से करेक्ट कर देता हूँ। ओके, सो अभी तक हमने देखा कि सीरीज के अंदर हम किस तरीके से आपका इंडेक्स वैल्यू चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम हमारे अकॉर्डिंग यूजर डिफाइंड इंडेक्स भी पास आउट करवा सकते हैं। ओके, नाउ अभी हमने इंडेक्सिंग की बात करी, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्लाइसिंग। वी कैन ऑल्सो द स्लाइस, लाइक हम यहाँ पर जब पाइथन के अंदर वर्क कर रहे थे या numpy में वर्क कर रहे थे, तब भी वहां हम स्लाइसिंग का यूज कर रहे थे। सेम पांडास के अंदर भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। हाउ? सो हमारे पास पहले से ही डेटा है विच इज आर, ओके, दिस डेटा सीरीज कैप कंट्री। नाउ मुझे यहाँ पर स्लाइसिंग का यूज करना है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सीरीज है कैप कंट्री, एंड वी सिंपली यूज स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर हम बेसिकली आपका स्टार्ट एंड एंड पैरामीटर्स को यहाँ पर लिखते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि लेट्स से कि मेरा जो 1 से स्टार्ट हो एंड 2 पर एंड हो, और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एंड होता है वो हमेशा -1 होता है। सो यहाँ पर मैं 3 लेके चलूंगा, और मैं आपको एक बार बताता हूँ इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 एंड 30 जो हमारे पास है यहाँ पर डेटा आ चुका है। ओके, सो अगर आप इसको देखें तो ये हमारा 0 है। सो हमने इसको तो इंक्लूड नहीं करा, हमने स्लाइसिंग स्टार्ट करा है 1 से, कि हमारा स्लाइसिंग स्टार्ट हो जाएगा 1 से, दिस 2 एंड दिस इज 3। बट हमें पता है कि जो 3 होता है वो एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता है। सो ये जो है अप टू 2 तक जाएगा, और हमारे पास ये डेटा जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से स्लाइसिंग कर पा रहे हैं। अभी हमने जो है बेसिकली आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा इंडेक्स वैल्यू होता है उसके थ्रू हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग करी है। बट व्हाट इफ, क्या मैं यहाँ पर लेट्स से कि इंडेक्सिंग कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेट्स से कि अभी हम जो है हमारा ये वाला जो हमारे पास सीरीज था जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट करा था, मैं इसको फिर से रन करवाता हूँ ताकि हमारे पास ये ओरिजिनल जो है हमारे पास डेटा आ जाए। एंड अब हम जो है बेसिकली यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी स्लाइसिंग करवा सकते हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको शो करवा देता हूँ, ये हमारा जो है अब डेटा हो चुका है। नाउ मैं चाहता हूँ कि यूएसए से लेके यूके तक मेरा जो है डेटा स्लाइस हो। देन हाउ? वी यूज सीरीज कैप कंट्री, एंड देन यहाँ पर हम यूज करेंगे हमारा स्लाइसिंग। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे लेट से यूएसए कॉलन, एंड देन हम चाहते हैं कि यूके तक जाए, सो यूके। बेसिकली यहाँ पर जो है आपका स्टार्ट और एंड दोनों इंक्लूड होते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूएसके और यूएसए दोनों आ चुका है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम डेटा को स्लाइस कर पा रहे हैं। ओके, एक और हमने स्लाइसिंग के अंदर देखा था कि चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, या फिर हम बात करें आपके numpy एरे की, तो वहां पर हम रिवर्स ऑर्डर भी करवा रहे थे बाय यूजिंग स्लाइसिंग। हम वहां पर नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर रहे थे। सो इन पाइथन ऑल्सो वी कैन रिवर्स आर डेटा। लेट्स सी। सो हमारे पास जो ये सीरीज है, लेट्स से कि मैं यहाँ पर सिंपली कॉलन कॉलन -1 का यूज करूंगा ताकि, ओके, ये बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि स्टार्ट से एंड तक जाओ बट रिवर्स ऑर्डर हो जाए। -1 जो है वो हमारा रिवर्स ऑर्डर के लिए होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल था वहां पर हमारे पास
टॉप पे इंडिया था और सबसे बॉटम पे जो हमारा डेटा था वो फ्रांस था। बट फ्रांस अब जो है टॉप पर हो चुका है और हमारा जो रिवर्स है वो यहाँ पर डेटा आ चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से यहाँ पर हम आपका पांडास का जो सीरीज है उसको हम रिवर्स कर पा रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पर हम बेसिकली एक और बिग डेटा को लेते हैं ताकि हम और अच्छी तरीके से यहाँ पर स्लाइसिंग कर पाएं और स्लाइसिंग की हेल्प से हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन को भी देख सकते हैं। लेट्स सी। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सीरीज क्रिएट करता हूँ। लेट्स से कि उस सीरीज में मैं अल्फाबेट इंक्लूड करूंगा। सो सीरीज का नेम दे देते हैं सीरीज अल्फा। ओके, नाउ pd डॉट सीरीज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बेसिकली वैल्यूज को यहाँ पर हम पास करेंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पर np डॉट अरेंज का यूज करता हूँ। ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि 10 से लेके लेट्स से 15 तक जाए। सो इट मीन्स 16 और जो हमारे पास स्टेप होता है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। सो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ कॉमा लगा के हम इंडेक्स यहाँ पर पास आउट कर देंगे। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ a, देन b, देन c, देन d, ओके, देन e, ओके, देन f। बेसिकली यहाँ पर हमने 6 वैल्यू दिया है बिकॉज 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 दे ऑल्सो 16, मतलब 6 काउंट हो जाते हैं वहां पर। 16 इंक्लूड नहीं है, 15 तक जाएगा। इसलिए हमारे पास जो है इस आप कह सकते हैं एरे का जो काउंट होगा वो 6 होगा। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू भी 6 दिया है। ओके, मैं यहाँ पर लेट से कि इसको यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सो ये हमारे पास जो है सीरीज का डेटा आ चुका है। नाउ मैं चाहता हूं कि दिस इज ए जीरो इंडेक्स। ओके, मैं चाहता हूं कि 1 से लेके लेट्स से कि 2 तक, मींस हमारे पास ये जो 2 आप कह सकते हैं रोज है। ओके, 11 और 12 डेटा ये लेट से मॉडिफाई हो जाए बाय यूजिंग एनी नंबर। सो how we can do? So we simply use series alpha and then हम यहाँ पर let's say इंडेक्स पास करेंगे और हमें पता है कि जो एंड है वो इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3 एंड वैल्यू हम मॉडिफाई करके लेट से कर देते हैं 50। ओके, और मैं यहाँ पर लेट से सीरीज अल्फा को यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ। नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास जो है बी एंड सी का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। अभी तो हमने बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग देखा। क्या हम बेसिकली हमारा इस यूजर डिफाइंड आप कह सकते हैं इंडेक्स की वैल्यू को यूज करके भी किया जा सकता है? लेट्स सी। सो वेरी सिंपल, हम यहाँ पर यूज करेंगे सीरीज अल्फा देन स्क्वायर ब्रैकेट। देन मैं चाहता हूँ कि लेट्स से कि सी से ई तक, ओके, हमारे पास लेट से कि जो डेटा है वो हो जाए लेट से 500 और मैं यहाँ पर सीरीज अल्फा को प्रिंट करवा देता हूँ। नाउ अब आप देख सकते हैं कि सी से लेके ई तक आपका जो आप कह सकते हैं डेटा है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम स्लाइसिंग को किस प्रकार से यूज कर पा रहे हैं हमारे सीरीज के अंदर। नाउ वी विल टॉक अबाउट some another topics. Let's say we talk about attributes. Okay, what is attributes? So we talk about attributes of series. So attributes are very simple. Attributes मतलब एक प्रकार का आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि आपके सीरीज के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ओके, और हम सीरीज को बहुत बेहतर बना सकते हैं बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स। सो लेट्स सी। सो हमारे पास एक सीरीज था, सीरीज कैप कंट्री। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है ऊपर जीरो दिख रहा था विच इज योर कॉलम नेम बेसिकली। लेट्स से कि मैं इस कॉलम नेम को चेंज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस जीरो की जगह मुझे कैपिटल लिखा हुआ दिखे बिकॉज दीज आर कैपिटल्स। ओके, सो हाउ, सो वी यूज सीरीज कैप कंट्री डॉट नेम। ओके, बेसिकली हम यहाँ पर सीरीज का नेम दे रहे हैं और सीरीज का नेम क्या होना चाहिए? लेट्स से कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपका कैपिटल्स।
ओके। और नाउ मैं यहाँ पर बेसिकली आपकी सीरीज को प्रिंट करवा लेता हूँ। नाउ अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब जो हमारा सीरीज है उसका जो है आप कह सकते हैं लुक जो है बहुत ही अच्छा हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक नेम को दे दिया। बेसिकली यहाँ पर हमें जीरो कुछ समझ नहीं आ रहा था और ये बहुत ही अच्छा नहीं दिख रहा था, बट अब हमें जो है हमारा सीरीज का नेम मिल चुका है विच इज योर कैपिटल्स। ओके, क्या हम इंडेक्स का भी नेम दे सकते हैं? लेट्स सी। सो हम देना चाहते हैं सीरीज कैप कंट्री के अंदर आपका इंडेक्स का नेम, जो वी यूज डॉट इंडेक्स डॉट नेम एंड वी यूज सम नेम। लेट्स से कि यहाँ पर हम कंट्रीज देना चाहते हैं, कंट्रीज। ओके, नाउ अब हम लेट्स से कि इसको प्रिंट करवाएं, तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो इंडेक्स का नेम है वो चेंज हो चुका है, और यू कैन से अब जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है विच इज कंट्रीज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम सीरीज का नेम चेंज कर पा रहे हैं, मॉडिफाई कर पा रहे हैं, और हम किस तरीके से आपके इंडेक्स का नेम ऐड कर पा रहे हैं। सो लेट्स सी अनदर एट्रीब्यूट विच इज योर लेट्स से वैल्यूज। सो व्हाट इज वैल्यूज? बेसिकली ये आपको सीरीज की वैल्यूज निकाल के देगा। एज वी नो कि ये हमारे पास वैल्यूज होता है, आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो हमारे पास सीरीज का एक्चुअल में जो डेटा है विच इज कोल्ड एज वैल्यूज, और ये जो हमारे पास डेटा है वो आपका इंडेक्स वैल्यू होता है, इंडेक्स होता है बेसिकली। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सीरीज है उसकी मुझे वैल्यूज मिले। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमें वैल्यूज मिल चुका है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हम किस तरीके से पर्टिकुलर सीरीज का नेम चेंज कर पा रहे हैं, इंडेक्स का नेम चेंज कर पा रहे हैं, और आपकी वैल्यूज को यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। नाउ हमने numpy के अंदर बेसिकली देखा था एक साइज एट्रीब्यूट, वो हमें बताता था कि हमारा जो numpy एरे है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, सेम हमारे पास पांडास के अंदर होता है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर इसका साइज पता करना चाहता हूँ, देन वी सिंपली यूज डॉट साइज विच इज 4, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ डेटाज है वो ओनली 4 है। ओके, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक एम्प्टी एट्रीब्यूट और होता है जो कि बताता है कि क्या आपका जो सीरीज है वो एम्प्टी है। लेट्स सी सीरीज कैपकट डॉट लेट्स से एम्प्टी। ओके, सो हम यहाँ पर यूज करेंगे आपका एम्प्टी एट्रीब्यूट, और बेसिकली एम्प्टी है या नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर हमें बूलियन जो है हमारे पास वैल्यूज आएंगी आइदर ट्रू और फॉल्स। बेसिकली हमारा जो ये सीरीज है ऑब्वियसली एम्प्टी नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 वैल्यूज इंक्लूड है, सो यहाँ पर रिजल्ट में फॉल्स मिलेगा। बट यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरीके से हम एक सीरीज को एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी। सो मैं यहाँ पर सीरीज एम्प्टी करके एक वेरिएबल नेम बनाता हूँ। ओके, सिंपल हम pd डॉट सीरीज का यूज करेंगे, और जब हम कोई डेटा ही यहाँ पर इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे पास एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हम चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग एम्प्टी एट्रीब्यूट। ट्रू, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, numpy के अंदर हमने देखा था कि जब हमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने होते थे देन वी यूज डॉट शेप। ये बेसिकली हम देखेंगे जब हम डेटा फ्रेम पे वर्क करेंगे, बट यहाँ पर भी मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। सो सीरीज कैपिटल कंट्री का हम यूज करेंगे, एंड यहाँ पर हम डॉट शेप का यूज करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 4 मिला है, बिकॉज हमारे पास ये 1D एरे है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही ये रिप्रेजेंट करता है। जब हमारे पास एक 2D आप कह सकते हैं डेटा होगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम्स, तो वहां पर हमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दिखेंगे। ओके, अभी हमने जो है हमारे जो मेजर्स एट्रीब्यूट्स हैं सीरीज के वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम मेथड्स। सो मेथड्स एंड वी नो कि बेसिकली मेथड इज ए नेम बेसिकली जो कि यूज किया जाता है आपके फंक्शन के लिए। बेसिकली हमारे पास कुछ सीरीज के पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं और वी कैन से मेथड्स होते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। सो यहाँ पर मैं एक सीरीज क्रिएट करता हूँ सबसे पहले, ताकि हमारे पास एक थोड़ा बिग डेटा हो।
लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सीरीज एक क्रिएट हो, लेट्स से सीरीज 6 pd डॉट सीरीज, एंड यहाँ पर मैं np डॉट अरेंज का यूज करूंगा। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि 10 से लेके 20 तक मेरे पास वैल्यूज आए। सो मैं यहाँ पर 21 दूंगा। ओके, एंड लेट्स प्रिंट इट सीरीज 6। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा सीरीज आ चुका है। ओके, जहाँ पर हमारे पास जीरो पे जो है 10 है, एंड जो हमारे पास 10th इंडेक्स है वहां पर हमारे पास 20 वैल्यू है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ आप कह सकते हैं कि पांडास के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि हमारे डेटा में एनालिसिस करते समय, आप कह सकते हैं डेटा प्रोसेसिंग में, और डेटा आप कह सकते हैं जब हम लोड करवा रहे होते हैं तब हमारे पास बहुत ही यूजफुल होता है। बेसिकली लेट्स से कि आपके पास मिलियंस ऑफ रोज हैं, और यू कैन से कि थाउजेंड्स ऑफ रोज है। ठीक है, तो आप किस तरीके से पता कर पाएंगे कि बेसिकली उस डेटा में है क्या? बेसिकली हम सिंपली जब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से लोड करवा सकते हैं, हम लोड करवा लेंगे, फिर हम डेटा को प्रिंट भी करवा देंगे। बट एज यू नो कि हमारे पास जो लेट्स से कि थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं, तो हम उनको एकदम से तो प्रिंट नहीं करवाएंगे, और बेसिकली वो हमारा जो है आप कह सकते हैं हैवी डेटा हो जाता है, और उसको थोड़ा मैसअप हो जाता है देखना। क्या हो कि लेट्स से कि मुझे ओनली टॉप 10 रोज चाहिए, टॉप 20 रोज चाहिए, ताकि मैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकूं कि मेरा डेटा एक्चुअली में है क्या। ओके, सो उसके लिए हमारे पास कुछ यूजफुल मेथड्स होते हैं हमारे पांडास के अंदर। लेट्स सी। सो हमारे पास सीरीज यहाँ पर जो है हमारे पास 6 है, एंड मैं यहाँ पर हैड का यूज करूंगा, और यहाँ पर हम कोई भी नम वैल्यू डाल सकते हैं। बेसिकली ये हमें रिटर्न करवाता है आपकी फर्स्ट एन रोज को। बट अगर आप कुछ भी यहाँ पर पास आउट नहीं करते हैं, सो ये बाय डिफॉल्ट आपको 5 रोज यहाँ पर दिखाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास 5 डेटाज आ चुका है। लेट्स से कि मुझे चाहिए 7। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 7 डेटा आ चुका है सीरीज का। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम हेड जो हमारा मेथड है उसको हम यूज कर पा रहे हैं। नाउ अनदर इज, अभी हमने बात किया था कि लेट से कि मेरा जो टॉप का डेटा है वो मुझे शो, क्या हो कि लेट से कि मैं बॉटम का डेटा शो करना चाहता हूँ। आई नो कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सबसे पहले उस डेटा को आप रिवर्स ऑर्डर में ले आए, ओके, एंड देन आप हेड का यूज करें, तब आपको दिख जाएगा। बट नहीं, पांडाज हैव एन मेथड जो कि हमें बहुत ही यूजफुल होता है, विच इज, मैं आपको यूज करके बताता हूँ। लेट्स से सीरीज 6 डॉट टेल्फ मेथड का यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे, और यहाँ पर सेम अगर हम कुछ भी पास आउट नहीं करेंगे, सो वो बाय डिफॉल्ट हमें 5 दे देगा। नहीं तो आप यहाँ पर एन जो है यहाँ पर वैल्यूज डाल सकते हैं। ओके, देयर इज एन अनदर मेथड आल्सो। लेट्स सी। जब हम सीरीज पे वर्क कर रहे होते हैं, सो सीरीज लेट्स से 6 पे मैं यहाँ पर काउंट आप कह सकते हैं फंक्शन और मेथड का यूज करूंगा, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ काउंट्स आ चुके हैं। ओके, बेसिकली ये आपके पास किस चीज के काउंट आए? क्या ये मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 जो है हमारे पास डेटा है। सो क्या ये नंबर ऑफ डेटा को यहाँ पर दे रहा है? सो उसके लिए तो हमारे पास डॉट साइज एट्रीब्यूट था। नो, बेसिकली काउंट मेथड क्यों यूज आ रहा है? काउंट मेथड आपका रिटर्न करता है नंबर ऑफ नॉन नंबर नेन वैल्यूज को। अब नेन वैल्यूज मतलब कि जो आपकी नंबर वैल्यूज नहीं है उनको हम नेन कहते हैं। सो कितने ऐसी वैल्यूज हैं जो एक्चुअली में आपकी सीरीज में नंबर्स हैं, वो हमें यहाँ पर रिटर्न करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम इसके अंदर इस चीज को यूज कर पा रहे हैं। ओके, so I hope you understand the concepts of the methods, attributes and your slicing, indexing in the pandas, और हम किस तरीके से एक सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं by using your list, numpy and your dictionary. I hope you understand the concept of the pandas in this video, and thanks for watching.